السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ؟ قال بكل شعرة حسنہ۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنہ۔ رواہ الامام الہمام ابن ماجۃ القزوینی فی سننہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یہ کس کے بچے ہیں؟ لے جائیں ان کو ابو کے پاس، پریشان ہوگا بچہ۔ مولانا یہ پریشان ہے بچہ، چلے بیٹے شاباش۔ میں کہوں جی ہماری تقریر چل رہی ہے، بچہ باپ سے پریشان ہو، فائدہ ہوں تقریر دا۔ معزز دوستو، آج 16 جولائی 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ میں آپ کی اس خدمت میں یہاں چوٹی زریں ضلع ڈیرہ غازی خان آپ کی خدمت میں مولانا عبداللطیف صاحب کے واسطے سے اور ہمارے ڈاکٹر اظہر صاحب کے واسطے سے موجود ہوں۔ ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت سے حضرت مولانا غلام صدیق دامت برکاتہم، حضرت مولانا محمد طیب دامت برکاتہم موجود ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں مسائل و فضائل قربانی کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ بس آپ توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی زندگی میں اللہ کے رسول پر قربانی کا حکم اتارا گیا ہے۔ رسول پاک مدینہ منورہ میں 10 سال رہے ہیں۔ مکث رسول اللہ بالمدینہ 9 أو 10 سنین یضحی۔ حدیث پاک میں ہے حضور پاک 10 سال رہے اور 10 سال قربانی فرماتے رہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی کی ہے۔ قربانی وہ عبادت ہے جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں بھی ہے، جس کا ذکر رسول پاک کے فرمان میں بھی ہے، جس کا ذکر صحابہ کے اجماع میں بھی ہے، جس کا ذکر فقہاء امت کی تحریرات میں بھی ہے۔ وہ وقت سے آج تک مسلمان قربانی حضرت ابراہیم کی سنت سمجھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جب یہ حکم اللہ کے رسول نے پڑھ کے سنایا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی؟ سنت ابیکم ابراہیم کا جواب آیا۔ یہ حدیث پاک ہے سنن ابن ماجہ میں۔ امام ابن ماجہ القزوینی فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے قربانی کا جو ہمیں حکم بیان فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارے والد یعنی ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ فالصوف، میرا جانور تو اونی ہے، اونی جانور کے اندر بالوں کے معاملے کی نیکی کا کیا معاملہ؟ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر بال کے بدلے میں جو اونی ہوگا پھر بھی نیکی ملے گی۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت یوں بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے حضرت رسول اللہ کی جس میں حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنا فرمایا گیا، جو میں نے پڑھی ہے۔ سوال اٹھتا ہے حضرت ابراہیم کی سنت کیسے ہے؟ اذ قربا قربان کہہ کر
قرآن کریم تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا ذکر کرتا ہے اور قرآن کریم کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ سورۃ حج آیت نمبر 28 کہ رب کائنات نے تو ہر امت کو قربانی کا حکم دیا ہے. پھر اسے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا پچھلے انبیاء میں حضرت آدم کی طرف منسوب کر کے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم کی بجائے حضرت آدم کی سنت ہے، حضرت شیش کی سنت ہے، حضرت ادریس کی سنت ہے، حضرت دانیال کی سنت ہے، حضرت نوح کی سنت ہے؟ ان کی تو بات نہیں ہوئی. سنت اور طریقے کی بات آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا ہے. جی وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے قربانی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تھی، قربانی حضرت ابراہیم کے بعد بھی ہے، لیکن بنیادی فرق تعمیم و تخصیص کا ہے. تعمیم و تخصیص کا معنی اختیار اور انتخاب کا ہے. وہ فرق کیا ہے؟ حضرت ابراہیم سے پہلے قربانی کے حکم میں اختیار تھا. آپ نے قربانی میں پیسے دینے ہیں، پیسے دے دے. شربت پلانا ہے، شربت پلا دے. پانی پلانا ہے، پانی پلا دے. گھاس دینا ہے، کسی چارے کے اندر جانور کو گھاس کھلا دے. کوئی جانور ذبح کرنا ہے وہ کر لیجئے. قربانی عام تھی، اس میں اختیار تھا، بندے کی مرضی تھی، بندے کی چاہت تھی، اپنا انتخاب تھا، اپنی سلیکشن تھی. بندہ جیسے چاہتا ویسے قربانی کرتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادگان ہیں، ایک کا نام حضرت حابیل ہے، ایک کا نام قابیل ہے. قابیل و حابیل کی لڑائی مشہور ہے، قابیل و حابیل کا اختلاف مشہور ہے، اور قابیل جس کے نام میں قاف آتا ہے یہ قاتل بنا ہے، اس نے حضرت حابیل کو شہید کیا ہے. حضور پاک علیہ السلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں نے جس مسئلے پر قربانی کی منت مانی تھی اس وقت قربانی یہ تھی کہ جس چیز کو قربان کرنا چاہتے ہو اسے اٹھاؤ اور آ کے صحرا میں رکھ دو. اگر صحرا میں اللہ کی طرف سے آسمان کے اوپر سے ایک آگ آئے، وہ آگ آ کر قربانی کو جلا دے. پتا چلا قربانی قبول ہو گئی اور وہ چیز ویسے کی ویسی پڑی رہے، اس پر آگ نہ آئے، وہ جل کے بھسم نہ ہو، جل کے راکھ نہ ہو، چنگاری نہ اڑے، وہ قبول نہیں ہوئی. ترتیب شریعت یہ تھی. ان دو بھائیوں نے قربانی پیش کی کہ ہم میں سچا کون ہے، ہم میں غلط کون ہے. حضرت حابیل ریوڑ چڑھاتے تھے تو انہوں نے ایک دمبا قربانی میں پیش کیا، اور قابیل کا کام ریوڑ بازی نہیں تھا بلکہ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا. اس کے پاس گھاس تھا، وہ اپنے گھاس لایا، گھاس کو میدان میں رکھ دیا. آسمان سے آگ آئی، سوکھی گھاس کو نہیں جلایا بلکہ اس چیز کو جلایا جو حضرت حابیل نے پیش کی تھی. وہ قربانی قبول ہو گئی. میری بات کا مطلب یہ ہے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے قربانی تھی لیکن اختیار تھا، آپ جانور کریں یا غیر جانور کریں. لیکن جب بات آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق لٹایا، چھری گردن پہ چلانے لگے. اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. سورۃ نمبر 37 سورۃ والصافات ہے، آیت نمبر 108 ہے. رب کائنات نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اسماعیل کو بچایا، اس کے نیچے ان کی چھری کے نیچے ایک دمبے کو سلایا، انہوں نے اس پر چھری دی اور اس کے بدلے میں یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. ہم نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے اللہ کے حکم کو کامیاب کر دیا ہے. ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بہت بڑا امتحان تھا جس امتحان میں حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے ہیں. جب حضرت ابراہیم نے مینڈے کی قربانی پیش کی، دمبے کی قربانی پیش کی، جانور کی قربانی پیش کی، اللہ رب العزت کی رحمت کو یہ عمل اتنا پسند آیا. اللہ نے اپنی رضا کے حصول کے لیے باقی امت کو یہ حکم دیا کہ اب سب کو قربانی تو پیش کرنی ہے، کسی اور کی نہیں، اپنے جانور کی پیش کرنی. اسی لیے یہ سنت رسول بھی ہے اور سنت ابراہیم بھی ہے. آپ کی توجہ ہوئی تو شاید یہ نقطہ آپ نے پہلی بار سنا ہو. میں علماء کی بات نہیں کرتا، میں عوام کی بات کرتا ہوں. میں نے کئی بار مجمع میں پوچھا ہے بھئی سنت آدم کیوں نہیں کرتے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت قربانی تھی. آپ توجہ کرنا، میں ایک نقطہ مزید دینے لگا ہوں
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور یہ قربانی کی، آپ نے خواب بھی سنا ہے، واقعہ خواب بھی سنا ہے، حالات خواب بھی سنے ہیں، تعبیر خواب بھی سنی ہے، معاملات خواب بھی سنے ہیں، لیکن جس زاویے سے، جس نقطہ نظر سے، جس تناظر سے، جس ترتیب اور کیفیت و اہمیت سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ڈیرہ غازی خان کے دوستو ذرا توجہ رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا، خواب میں اپنے بچے کو ذبح کرتے ہوئے پایا۔ سورت نمبر 37 سورت والصافات آیت نمبر 102 بتاتی ہے حضرت ابراہیم کے لیے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا رات سویا تھا، سونے کے اندر نیند میں نے خواب دیکھا ہے، چھری میرے ہاتھ میں ہے، چلاتا تیری گردن پہ ہو، بتا تیرا معاملہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کیا چیز تھی؟ مکتب کی کرامت تھی یا اللہ کی رحمت تھی سکھائی جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم، والد مکرم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی خدمت میں یہ نہیں کہا میرے ابو خواب دیکھا خواب کو پورا کرو، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت اسماعیل نے عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابو اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ غیور مسلمانوں میں سوال کرنے لگا ہوں، بھئی جواب یہ تو نہیں ہے جو اسماعیل علیہ السلام نے دیا ہے، سوال خواب کا ہے اللہ کے حکم کا نہیں ہے، سوال خواب کا ہے اللہ کی وحی کا نہیں ہے، سوال خواب کا ہے اللہ کے طریقے کا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو نہیں فرمایا ان اللہ قد امرنی ان اذبحک، اللہ نے حکم دیا ہے تو میں ذبح کروں۔ حضرت ابراہیم نے ذبح میں اللہ کے حکم کی بات، اللہ کے امر کی بات، اللہ کی وحی کی بات نہیں کی، تو حضرت اسماعیل کا جواب تب مطابق ہوتا جب وہ یوں کہتے یا ابت افعل ما رأیت فی المنام، ابو خواب کو پورا کرو۔ لیکن والد خواب کی بات کرتا ہے، بیٹا اللہ کے حکم کی بات کرتا ہے، والد نیند کی بات کرتا ہے، بیٹا وحی الہی کی بات کرتا ہے، والد خواب کا ذکر کرتا ہے، بیٹا اللہ کے حکم کی بات کرتا ہے۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ کھولیے مفاتیح الغیب کھولیے، امام فخر الدین رازی اٹھائیے، تفسیر کبیر کھولیے، 23ویں جلد کھولیے، اس آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ اس کا نقطہ یہ ہے بیٹا پیغمبر ہے، پیغمبر زادہ ہے، پیغمبر ابن پیغمبر ہے، نبی کا بیٹا ہے، اسے پتا ہے جو میرا والد ہے وہ صرف امتی نہیں، وہ امتی نہیں ہے، اس کا خواب صرف خواب نہیں ہے، اس کی نیند نری نیند نہیں ہے، بلکہ وہ نبی ہے، اور نبی کا خواب اللہ کی وحی ہے، نبی کا خواب اللہ کا حکم ہے، نبی کا خواب اللہ کا امر ہے۔ تبھی بیٹے نے یہ نہیں کہا ابو خواب کو پورا کیجئے، بلکہ بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر، اللہ کے حکم کو پورا کرو، کیونکہ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، اسے نرا خواب نہ سمجھنا۔ ویسے ہی رکھ دیا کریں، ایسے پھینکنا مناسب نہیں ہے، کسی اور پہ بھی ایسے پھینکا جائے، مولویوں پہ بھی ایسے۔ میں بھائی کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، انہیں شرمندہ نہیں کر رہا، یوں پیسے پھینکنے کسی اوروں کی ترتیب ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ سمجھے تو سائی ڈاڑھی ستھری بیٹھے ہوئے اور مولوی دیکھو یہ منہ چاہ کے بیٹھے جی پتہ نہ ہوئے، ٹھیک ہے، انہوں نے ترتیب ہے، یہ ہماری ترتیب نہیں ہے، ہدیہ ہاتھ سے پیش کیا جاتا ہے۔ توجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اللہ کا حکم کیوں بنا ہے؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ معاملہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں حدیث پاک صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاۃ سے پیش کرنے لگا ہو۔ حضرت بلال نے اللہ کے رسول کے دربار میں حاضری دی، حضور پاک نیند مبارک سے اٹھے، اٹھ کے وضو تازہ نہیں فرمایا، صبح کی سنتیں پڑھ دی، صبح کی نماز جماعت سے پڑھا دی، سلام پھیرا۔ حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ دو باتیں ہیں، بلال پوچھو کیا ہے؟ آپ بھول گئے ہیں یا اللہ نے وضو کا حکم اٹھا لیا ہے؟ کیوں بلال کیا ہوا؟ آپ کو نیند سے اس فقیر نے اٹھایا ہے،
आपने वजू ताजा नहीं फरमाया, सुन्नतें पढ़ ली, वजू ताजा नहीं फरमाया, नमाज पढ़ा दी, क्या नींद से जो वजू टूटा, आप वजू करना भूल गए, ये अल्लाह ने वजू का हुक्म उठा लिया है। वजह क्या है, मामला क्या है, रीजन और लॉजिक क्या है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब को समझने के लिए हदीस पाक बड़ी तशरीह है। हुज़ूर पाक ने फरमाया, बिलाल मैं नबी हूं, आप उम्मती हैं, सर आंखों पे या रसूल अल्लाह, इन्ना ऐनाया तनामानी वला यनामु क़ल्बी। बिलाल नबी की नींद में नबी का दिल जागता है, नबी की आंख सोती है। क्या फरमाया, नबी की और नबी का दिल। उलमा बोलते हैं, स्टेज वाले बोलते हैं, आवाम खामोश है। नबी की नींद में नबी का दिल है, जरा सारे बताओ ना, सारे। भाई 6 से 7 घंटे का सफर मैंने किया है ना, मैं स्टेज वालों को कुछ नहीं कहता, मुझे आवाम से जरा मुखातब होने देना। 6 से 7 घंटे का सफर मैंने किया, थका हुआ मुझे होना चाहिए, दिन का तीसरा बयान कर रहा हूँ, जुमा अलहदा पढ़ा कर वहीं से आ रहा हूँ, थके हुए तो आप लग रहे हैं। 1 घंटे की बात मेरे सर पे है, मैं तो थका हुआ नहीं हूं। भाई मुझे बताइए, नबी की नींद में नबी का दिल जागता है। जज़ाकल्लाह। स्टेज वाले खामोश, मेरा मुंह इनकी तरफ है, आपकी तरफ नहीं है, तो सा तो फारिग में मसले, तो आपको हर शे पता है। आप बताइए, नबी की नींद में नबी का दिल, जरा जोर से हाथ खड़े करके ना, आप जरा मुझे हाथ खड़ा करके, नबी की नींद में नबी का दिल, नबी सो जाए दिल तब भी जागता है, नबी जागे हाथ खड़ा करके, नबी जागे दिल तब भी जागता है। जागता है नहीं जागता? ये मैंने हाथ इसीलिए उठवाए हैं ताकि मैं गुफ्तगू पे गुफ्तगू करता जाऊं, आपको पता ही ना हो, बाद में आप कहें वाह जी क्या बात है, रेड़े फेर लेते हैं, वाह वाह कर लेती है आखा केस। ये तो मौली ने ऐसे नहीं, तो मैं को कोई नहीं पता क्या क्या, यूं नहीं होना चाहिए। तवज्जो तवज्जो जिसकी नहीं है वो हाथ खड़ा करे, इसका माना है सबकी है। मैं पंजाब में एक जगह बात कर रहा था, अपर पंजाब में, तो वहाँ मैंने मजमे से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है। उन्होंने कहा जी हाँ। मैंने कहा इमाम का, मैं बता रहा था ना कि इमाम जहाँ ठहरता है ना उसके आगे कोई होता है ना उसके बराबर कोई होता है। तो मैंने उन्हें कहा इमाम वो होता है जिसके आगे तो आगे, यानी मजमा कहे बराबर भी कोई नहीं है। तो मजमे की तवज्जो नहीं थी, वो सारे कहने लगे इमाम तो वो होता है जिसके आगे तो आगे पीछे भी कोई नहीं होता। मैं कह जी चंगे सियाने हुए जैसे पिछू कोई ना होवे वो इमाम होता है। तो आप जरा तवज्जो रखना, मैंने इसीलिए आपकी तवज्जो मांगी है। अभी मैं दिल जागने पर एक नजरिया दे रहा हूं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना ऐनाया तनामानी वला यनामु क़ल्बी, बिलाल में नबी हूँ, नबी का मामला ये है, नबी की नींद में नबी की आंख सोती है, नबी का दिल जागता है, नबी जागे दिल तब भी जागता है, नबी सो जाए दिल तब भी जागता है। पता चला पैगंबर का दिल जागता है, इसीलिए मामला और है। तो नबी की नींद में नबी का वुजू, सारे नबी का वुजू नहीं टूटता, तो इसीलिए नबी की नींद के बाद नबी को वुजू ताजा करने की जरूरत नहीं है। भाई दिल जागता क्यों है? उसकी वजह यह है अल्लाह चाहे जागने में आयत उतार दे, रब चाहे सोने में आयत उतार दे, जब चाहे जब आयत उतार दे। तो नबी के दिल में वो कैफियत रखी है, वो ताकत कुव्वत हिम्मत सकत रखी है, नबी के दिल में रब ने वो पावर रखी है। नबी का दिल रात को नींद में भी जागता है। अल्लाह की वही आए तो वो ख्वाब नहीं है, अल्लाह की वही होती है। इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब देखा तो बेटे ने ठक जवाब दिया इफ अल मा तो मर, अल्लाह के हुक्म को पूरा कीजिए। क्यों? उन्हें पता है मेरे वालिद जलीलुल कदर नबी है और इनका ख्वाब निर्रा ख्वाब नहीं है, अल्लाह की वही है। अच्छा, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक़्त से कुर्बानी की सुन्नत और कुर्बानी का तरीका शुरू है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुर्बानी कर दी तो अब ये सुन्नत इब्राहीमी भी है और सुन्नत मोहम्मदिया भी है। हम दोनों सुन्नतों पे अमल पैरा हैं। मेरे दोस्तों, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक कुर्बानी मुसलमान करते आ रहे हैं। मैं कुर्बानी का निसाब आपको सुना दूं।
हमारे उलमा कहते हैं 52.5 तोला चांदी जिसके पास हो या 7.5 तोला सोने जिसके पास हो। तो कुछ लोग कहते हैं जी हदीस में तो 7.5 तोले का लफ्ज नहीं है, हदीस में तो 52.5 तोले चांदी का लफ्ज नहीं है। मैं कहता हूँ जी ठीक है, उलमा को फुक़हा को रब ने इल्म भी दिया है, अल्लाह ने इनको अक़ल सलीम भी दी है। इल्म भी हो और इल्म के साथ हिल्म भी हो। खुदा की कसम अल्लाह की रहमतें बरसती है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने जामे तिरमिज़ी में फरमाया वबिही क़ालल फ़ुक़हा वहुम अअलमु बिमआनिल हदीस, फरमाया पैगंबर की फिक़ा के जो फ़ुक़हा है वो हदीस पाक को सबसे बढ़ के जानते हैं। आओ मैं फ़ुक़हा के दरबार में आपको हवाला के लिए ले जा रहा हूँ। हुज़ूर पाक के दौर में जो कुर्बानी और ज़कात का निसाब था, अगर दिरहम की बारी होती तो 200 दिरहम हदीस पाक में मौजूद है। दीनार की बारी आती तो 20 दीनार कलम हदीस पाक में मौजूद है। डेरा गाजी खान के दोस्तों याद रखना, दीनार हुजूर के जमाने में आज के तरह कुवैती दीनार कागज का नहीं होता था, सोने का होता था। दिरहम हुजूर पाक के दौर में आज की तरह दुबई के कागज का दिरहम नहीं होता था, बल्कि चांदी का होता था। 200 दिरहम चांदी के होते थे, 20 दीनार सोने के होते थे। हमने उनका वजन किया, हुजूर पाक के दौर के 200 दिरहम आज के दौर के 52.5 तोला चांदी बने। हुजूर पाक के दौर के 20 दीनार आज के दौर में 7.5 तोला सोना बने। ये न कहना कि 7.5 तोला का लफ्ज नहीं है, भाई नहीं है, लेकिन वजन तो मौजूद है ना भाई, वजन है। आप उस वजन को, वजन के बहुत से नाम हैं, किलो भी नाम है, पक्का सेर भी नाम है, लीटर भी नाम है, इसी तरह तोला भी नाम है, मासा भी नाम है। इसी तरह आगे चलिए तो और भी औज़ान मौजूद हैं। हुज़ूर पाक के दौर में उसे जो दिरहम कहते थे, अगर वो दिरहम 200 बन जाते तो 200 दिरहम का वजन 52.5 तोला चांदी बन जाता। हुज़ूर पाक के दौर में 20 दीनार बनते, सोने का होता था, कागज का नहीं था। इसे गोल्डन स्पैरो कहते हैं। ये गोल्डन स्पैरो 20 हो जाती तो 7.5 तोला सोना बन जाता। तो हुज़ूर पाक के दौर में उस पर आते थे। अब हम दिरहम क्यों नहीं कहते कि अब चांदी के दिरहम है नहीं, हुण सारे कागज ले। दुबई वाले भावे दिरहम देखो चाहते, भावे जड़े देखो कागज ले। कुवैती दीनार देख लें, दुनिया की बहुत बड़ी करेंसी का नाम है, ये भी कागज के हैं। ऊपर लिखा होता है हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। हमारे नोटों पे भी लिखा होता है। ये हामिल हाजा क्या है, मुतालबा क्या है, अदा करेगा क्या है। ये इस नोट पे जो है हुकूमत पाकिस्तान से जारी हुआ, हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। ये जो हमारा पाकिस्तानी ये 50 ये 50 का नोट है, ये हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। क्या मतलब, यानी 50 रुपए का जितना सोना है ये उसकी रसीद है। अगर तुम इसके बदले में सोना तलब करना चाहो तो तुम्हें मिल जाए। तो असल दीनार की कदर है ना, तो इसलिए उसका एवज है। तो याद रखिए, अगर इनकी कीमत भी हुजूर के दौर के 200 दिरहम 52.5 तोला चांदी के बकदर हो गया तो इस पर भी कुर्बानी है। ये निसाब है कुर्बानी का। और मैं एक जुमला समझाता हूं, ये कुर्बानी हर साहिब निसाब पर है। वो कितने तोला चांदी है, कितने तोला सोना है, उसके पैसे क्या है, मौजूदा कीमत क्या है। मैंने कराची था खैबर मुख्तलिफ शॉप से मालूम किया है रेट। जो औसतन रेट है वो मैं आपको बता रहा हूं, 52.5 तोला चांदी की कीमत तकरीबन 80,000 रुपए है। 76,500 77,500 मुख्तलिफ रेट्स चल रहे हैं, तकरीबन 80,000 रुपए के लगभग। जिसके पास करेंसी मौजूद है उस पर कुर्बानी आ गई। इल्ला ये कि उस पर कर्जा हो। कर्जा देखा जाएगा कि कर्जा कितना है। मसलन 10 लाख कर्जा है, 15 लाख का ये मालिक है, तो इस पर फिर भी कुर्बानी है। हाँ, इतना कर्जा हो कि अगर कर्जे को निकाले तो पीछे 80,000 भी नहीं बचता, 52.5 तोला चांदी, फिर कुर्बानी नहीं है। और अगर ये है एक घर में 6 आदमी है तो 6 की 6 पर कुर्बानी है। यूं नहीं है भाई सारा चूल्हा हिक्को है साहब,
असा खा पी हिको करेंदे बाबा सही करे सी सब अब्बे सही नहीं करना बस शादी भी अब्बे सही की थी को केड़ी लोड़ है जाल अपनी अपनी ते ले लावी अपना अपना मेरा पुत्र भाई वो अगर आप साहिब निकाह है तो साहिब निसाब भी तो है ना। तो याद रखिए मेरे दोस्तों अगर अलहदा अलहदा निसाब पूरा हो गया तो अलग अलग कुर्बानी होगी। और इस कुर्बानी में एक गलतफहमी है, लोग कहते हैं सहाबा के दौर में तो घर का सरबराह कुर्बानी करता था बाकी सब नहीं करते थे। मैंने कहा हज़रत अबू अय्यूब की इस हदीस को पूरा पढ़ ले, घर का सरबराह कुर्बानी करता था बाकी सब खा लेते थे क्योंकि उन पे कुर्बानी नहीं थी। तो ये कहां लिखा हुआ है कि घर वाले सारे साहिब निसाब थे? सुने मेरे दोस्तों, जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है और वो न करे, रसूल पाक का फरमान सुन ले सही मुस्लिम से, मम वजद लहू साअ लिअन युज़ही फलम युज़ही फला यक़रबन्न मुसल्लाना। है हदीस पाक या नहीं? फरमाया जिस बंदे पर कुर्बानी की ताकत जितना पैसा है और वो नहीं करता वो मेरे ईदगाह में ना आए। ये नहीं है कि उसकी ईद नहीं होगी, ये गुस्से में समझाया जा रहा है कि किस मुंह से ईद पढ़ने आएगा, किस मुंह से। ये तो यही हाल है कि एक बंदा रोजा न रखे और अफ्तारी के वक्त कहे जी जी सब दस्तरखान लो च माशाअल्लाह माशाअल्लाह अफ्तारी ये किराड़ तने जो अफ्तारी भी बंदा छोड़ दे वैसे ये तो नहीं। तो उसे कहा जाएगा केड़ी बूथाड़ नाल तू आके था, केरी बूथी चाह के तू इतना दस्तरखान ते आए बैठे और बाबा किस मुंह से आए हो, तेरा तो रोजा नहीं है। तो भाई तुझे ताकत है कुर्बानी करने की या कुर्बानी में हिस्सा मिलाने की, वो तूने नहीं किया तो फला यक़रबन्न मुसल्लाना, किस मुंह से ईद पढ़ने आया है मेरे दोस्तों। और सुनिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने नमाज ईद और कुर्बानी का हुक्म इकट्ठा उतारा और कुरान ने बताया कि पहले नमाज ईद पढ़े फिर कुर्बानी करें। सूरत कौसर पारा नंबर 30 आयत नंबर 2 रब्ब कायनात फरमाते हैं फसल्ली लिरब्बिक, पहले बकरा ईद वन हर, इसके बाद कुर्बानी। पहले बकरा ईद की नमाज फिर कुर्बानी। हाँ यह है कि शहर में किसी एक जगह पहले वक्त में हो जाए, नमाज ईद हो जाए, बाद वाले फिर कुर्बानी कर सकते हैं कि पहले नमाज ईद तो हो गई ना, बाद में जाकर पढ़ लेगा दूसरी लेट वाले टाइम पर, लेकिन एक तो नमाज ईद होने देना। हदीस पाक में है, सही बुखारी में मौजूद है, अल्लाह के रसूल के दौर में ऐसा हुआ कुछ लोगों ने नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर डाली। रसूल पाक नमाज ईद पढ़ाने आए, अल्लाह के रसूल की खिदमत आलिया में अर्ज किया गया कि या रसूलल्लाह पहले पढ़ा ली। तो हुज़ूर पाक ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया मन ज़बह क़ब्ल अस्सलाह फ़इन्नमा हुवा लहमुन युक़द्दिमुहु लिअहलिही लैसा मिनन नुसुकी फ़ी शै वमन लम यज़बह फ़लयज़बह। सही बुखारी की रिवायत हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस आदमी ने नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर डाली, वाह वाह, ये तो अपने घर वालों को ईद के दिन गोश्त खिला रहा है, कुर्बानी कोई नहीं हुई। नहीं समझे? फ़इन्नमा हुवा लहमुन, ये तो गोश्त है, युक़द्दिमुहु लिअहलिही, बड़ा अच्छा आदमी है तो ईद अली वार पहले गोश्त खोए ना बैठे, कुर्बानी नहीं है। लैसा मिनन नुसुकी फ़ी शै, कुर्बानी नहीं है। और कुर्बानी क्या है? वमन लम यज़बह फलयज़बह, जिस बंदे ने अब नमाज ईद तक कुर्बानी नहीं की थी अब वो बिस्मिल्लाह पढ़ के कुर्बानी कर ले। मेरे दोस्तों इससे समझ आया कि मामला है क्या। और आजकल कुर्बानी के गोश्त के मामलात अजीब हैं। मुझे उस दिन एक दोस्त ने गुजरावाला से कॉल करके कहा कि उस्ताद जी, मैं कि जी 6 दिन बाद मेरी भतीजी की शादी है, मैं एक बैल ज़बह कर रहा हूँ, 7 हिस्से मेरे हैं, तो मैं इसको रख रहा हूँ ताकि 6ठे दिन वलीमे में लोगों को खिला दूँ, जायज़ है? मैंने कहा मेरे भाई एक शर्त के साथ जायज़ है। कहते हैं क्या है? मैंने कहा उस शर्त ये है कि लोगों से सलामी न लेना, सलाम लिखवा दें जी, पैसे दे दें, ये दे दिया तो तू कुर्बानी का गोश्त बेच रहा है, ये न कर रहा, वैसे दावत वलीमा खिला दो तो नो प्रॉब्लम। आजकल ये सलामी का रिवाज भी बड़ा अजीब है, ये बड़े जालिम लोग हैं सलामियों वाले, होटल वालों से भी ज्यादा है। होटल वाले पहले खाना खिलाते हैं फिर बिल लेते हैं, ये पहले वसूल कर लेते हैं बाद में खाना खिलाते हैं। अजीब लोग, ये सलामियों वलामियों कोई शरीयत की तालीम नहीं है, कोई नहीं। रसूलुल्लाह के 11 निकाह हैं,
किसी एक निकाह पर यह सलामी के लिए कोई रजिस्टर लेकर नहीं बैठा। रसूलुल्लाह की 4 साहबजादियां हैं, चारों का रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। दामाद 3 है क्योंकि हजरत उस्मान को एक के बाद दीगरे 2 बेटियां मिली हैं। तो हुजूर पाक की किसी एक साहबजादी के निकाह पर कोई सलामी वलामी की तरतीब नहीं है। और जब से सलामियां आई हैं, नाराज ना होना, ये मेरा फेवरेट उन्वान है, मैं इस पर भी 2 जुमले कह दूं। जब से सलामियां आई हैं ना, सुन्नतें छूटी हैं, मैरिज लॉन में जाकर गरीबों को रोक दिया और अमीरों को वलीमा खिलाया, डिवोर्स की शरह बढ़ गई है, तलाक बढ़ गई। हकीकत में आप देखें, हमारे अबाव अजदाद के रिश्ते चल गए, आपके और मेरे माँ बाप के रिश्ते चल गए। क्यों? वो शरीफाना वलीमे हुए थे। शरीफाना वलीमा कौन से? हुज़ूर पाक ने फरमाया जिसमें गरीब बुलाए जाएं, खैरुल वलीमा। मिशकात जल्द नंबर 2 किताब निकाह बाबुल वलीमा की हदीस पढ़ रहा हूं, और जिसमें गरीबों को रोका जाए, शर्रुल वलीमा। आज शर्रुल वलीमे हो रहे। मेरा रिकॉर्ड है, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, मैंने आज तक कोई शर्रुल वलीमा नहीं खाया और न खाऊंगा। मैं नहीं जाता हॉल में, जी मुझे हाल में बुलाना है तो पहले गुरबा बुलाओ, मैं चेक करूंगा, वली गुरबा बैठे तो मैं आऊंगा, नहीं तो न बुलाओ, हमारी शर्त पूरी नहीं, आप जाने आपको वलीमा जाने। मैं शर्त लगा दूं, आज गरीब कितों से 4 मदरसे से 4 तालिब इल्म बुला लो ना, 4 मदरसों से 4 क्लासेस बुला ले जी। एसी साहब और डीसी साहब और एसी साहब और पता नहीं कमिश्नर साहब को आप खिलाने के लिए तैयार है, लेकिन जिसके पांव के नीचे फरिश्ता पर बिछाए उस तालिब इल्म को क्यों नहीं बुलाते? तो मैं इस शर्त के बगैर नहीं जाता। यार गुरबा को आने के लिए क्यों आपने मना किया है? शरुल वली में मनाते हो। और मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, जब ये तलाक वाले मसले ये कॉल्स पे आते हैं ना, और मैं इन्हें सुनता हूं, मेरे साथ गाड़ी चला रहे हैं, इनसे जरा पूछिए, बाजों का जी चाहते हैं मोबाइल ऑफ कर दूं। यार आलिम इसलिए बने थे कि जिससे अल्लाह का अर्श हिल जाए, उस तलाक के मसले बताते बैठे, दिल दुख जाता है। वल्लाह बाजों का टाइम ऐसा होता है कि फोन उठाने को जी नहीं करता, क्या ये तलाकों के मसले पूछेंगे, फिर दिल में आता है कि यार हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, चलो इन्हें बता दें। एक एक दिन में मैं झूठ बोलूं ना, अल्लाह मदद खींच लेगा। एक एक दिन में 1-1 दर्जन मसले तो ये फकीर तलाकों के बताता है आपके साथ, 12 मसले। बाकी उलमा जो बैठे इनका अपना हाल है, इनसे पूछ लीजिए। मौलाना अब्दुल लतीफ बताएंगे, मौलाना सिद्दीक से, मौलाना से, इन हजरात से पूछिए, पता नहीं इनसे किन किन के राब्ते हैं, कौन कौन तलाक में पूछता है। भाई खुदा के लिए ये तलाकों की शरह कम कीजिए और खैरुल वलीमा कीजिए। और जहां तलाकें ज्यादा हों, बेवावगान ज्यादा हों, और वहां पर दूसरी शादी को रिवाज देना भी सीखिए। कहीं पर दूसरी शादी की बात करें ना, लोगों को जिमें को नांग खा गया हो, इवें बूथा निक्कू जे अगले आंदे थी वंदो, दूसरी शादी, अच्छा पहली मर गई है, अच्छा 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 पहली फौत थी, अच्छा पहली तलाक थी, नहीं से पहली भी हस दूजी, हाय अच्छा पहली दे बाल को नहीं पहली दे बाल ही, अच्छा वच केड़ी लोड़ है, ते तेको पहली दी केड़ी लोड़ है? ये कोई बात है? पहली मर गई थी, पहली को तलाक हुए थे, और पहली से इसकी औलाद नहीं थी, सब कुछ था, तो फिर क्यों दूसरी की? और कुर्बानी में हिस्से कितने होते हैं बताइए? बोलिए बोलिए, सारे बोलिए, कितने? कोई बंदा 7 कुर्बानियों के हिस्से मिला ले, एतराज आता है? बोलिए। तो अल्लाह फरमाते हैं मर्द में शादी के हिस्से कितने होते हैं? 4। यहां 3 हिस्से को हड़प क्यों कर जाती है पहली ज़ौजा मोहतरमा? 3 हिस्सों को क्यों खा जाती है ये? क्या मैं पूछ सकता हूं? कुर्बानी दे डांद हिस्से 7 ते मुसाले जहान 4 ते तू आके नहीं सारे मैं को। एक बंदा कल्ला डांद खावे, लोग क्या दरो भुरजोला सारा तय खावना आई नहीं आते। हमारी माओ बहनों को दिल भी बड़ा करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये तुसा होले होले आदे मत ए नेट दे जरिए घर गाहल पहुंच ना वने, घर वन्यो ते खल्ला तैयार होवे, जनानी आके सच मौलवी दे गए गाल कुड़ कुड़ किथा ते अंडे किथा, तो क्या जवाब देंगे लोग? और एक बात मैं मजीद भी करता हूं, जिन्हें बीवियां दूसरी शादी की इजाजत नहीं देती उनका भी एक प्रॉब्लम है। शायद उन्होंने अपनी बीवियों के साथ बिहेवियर गलत रखा है, सलूक गलत रखा है, उनके हक खाए हैं, उन पे जुल्म किया है। वो ये समझती हैं कि इन्हें दूसरी मिल गई तो मैं तो आधी पहले भूली हुई हूं, पक्की भूल जाऊंगी। ना बाबा ना, तुमने हुकूक पूरे देने, दूसरी शादी वाले हुकूक खाए
कल क़यामत में आकबत बहुत बुरी होगी, अल्लाह बचाए। हुकूक पूरे के पूरे। पहली इन्नहा कानत व कानत, हजरत आयशा को हुज़ूर पाक फरमाते थे खदीजा खदीजा है, पहली है भाई। लेकिन उस पहली की वजह से आपने दूसरी का हक नहीं खाना और दूसरी की वजह से पहली का हक नहीं खाना। ये मेरे जहन में आया कि यार बकरों में तो नहीं, लेकिन बैल में तो हिस्से 7 है ना, तो मर्द में हिस्से 4। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। फरमाए लोगो 2 शादियां, 3 शादियां, 4 शादियां करो। फ़इन खिफ्तुम, अगर डरपोक हो, अल्लाह तादिलु, तुमसे इंसाफ नहीं होगा, फवाहिदा, फिर एक पर गुजारा करो। मानो कि हम डरपोक हैं, हमसे इंसाफ नहीं होता, फिर एक करो। मन्ने तो सही ना मैं डरपोक हाँ। फ़इन खिफ्तुम, कुरान कहता है अगर तुम्हें खौफ और डर है, जिसे खौफ और डर हो वो डरपोक ही होता है। मन्ने चा जरा डूजी करे, अगला उक होता है, अच्छा पहली बज गई है, सुभान अल्लाह। मुझसे शायद आपके में से कोई कहे मौली साहब बड़े बड़े गालियां क्यों आधा बैठे, तुम्हारे मजमे जो एक बंदा उठे जरा आखे भी मेरी ई उम्र 11 बाल इन 3 जालियां इन, मैं उको मोबाइल तोहफा दे सका। मेरे अलहमदुल्ला 3 बीवियां इन 11 बाल इन। मैं गाल शाली में मैं जरा ना फतू दे कन डितू को तो डितू दे कन गामे को ना ले बैठा। मैं घर दे मामलात बड़ा एक्सपीरियंस और तजर्बा रख के पिया था। मेरे दोस्तों, आप हुकूक पूरा करेंगे तो आपको शादी करनी चाहिए। मैं एक जुमला कहता हूं, जिनके सीने में वालिद वाला दिल है ना, जरा वो अपने सीने पे हाथ रख के मेरी इस बात को दिल तक जगह दें। जिसकी जवान बेटी को अल्लाह न करे तलाक हो जाए, तवज्जो तवज्जो, अल्लाह न करे कुछ दिनों में तलाक हो जाए और दूसरी शादी आपने करनी नहीं है, उसने जवान बेटी को घर में बिठाए रखा और उसके बालों में सफेदी आ गई, मुझे बताएं इस बाप के गम का मुदावा कौन करेगा? बोलिए। आप भी बेटियां रखने वाले हैं, 3 बेटियों का अब्बू मैं भी हूं। जब बेटी के साथ वालिद का ताल्लुक है तो पूछें क्या मामला होता है। 3 जिंदा बेटियों का, जो वफात पा गई उन्हें भी शामिल करूं तो ज्यादा है मेरे दोस्तों। तो उस बेटी का गम बाप कैसे देखेगा? ये कोई शादी की चिट्ठी तो नहीं, अच्छा नहीं, ये कोई और मसला है। मैंने कहा लोग अगर भी शादी तो रोला पा लेता। तवज्जो। तो मेरे दोस्तों इसको देखें। और जहां बेवा मौजूद हो, हमारे मुआशरे में बेवा बहुत है, आप बेवाओं का सहारा क्यों नहीं बनते? अल्लाह न करे मैं अभी यहां से जाऊं और रास्ते में एक बंदे को फौत हुआ देखूं, नौजवान के 3 बच्चे हों और उसकी बेवा हो जाए बीवी, तो मुझे बताएं उसकी बेवा का क्या कसूर है? आप उनका सहारा क्यों नहीं बनते? यूं न कीजिए, यूं न कीजिए। हाँ, आप छुप के यारियों की तरतीबें बनाएंगे तो बीवियां आपको नहीं करने देंगी और मैं बीवियों का साथ दूंगा। ठीक कर रही हैं वो, लेकिन आप खुला कीजिए, आलिनुन निकाह पे अमल कीजिए, खुलेआम निकाह कीजिए और हुकूक पूरे कीजिए। नो प्रॉब्लम ऑन दिस मैटर। कोई डर और कोई खौफ की बात नहीं है। करेंगे ना इंशाअल्लाह? एक को इंशाअल्लाह तो जवाब आया, बाकी सारे आंकड़े तुसा सिर हलेंदे वे, जबान निवे हलेंदे। जबान को तोलो 4 शारकां दिए, सिर को तोलो 4 शेर दे। इकू हलावण औख है, इकू हलावण सौख है। करेंगे इंशाअल्लाह? दूसरा जरा जरे करना ले ना दूजी शादी हाथ चावन में कैमरा फिरवामा वाल पता लगे। चलो जज़ाकुमुल्लाह। और सुने, मैं एक जुमला कहता हूं, अपनी बीवियों के हुकूक का ख्याल भी करो। मैं हुकूक बताने लगा हूं, जरा आप खामद बैठे हैं, दिल पे हाथ रखना। खामद को ऊपर यह हक लाजिम है कि जो खुद खाए उन्हें खिलाए, खुद पहने उन्हें पहनाए, खुद इस्तेमाल करे उन्हें दे। हुकूक न खाए, बीवी को मारे नहीं, बीवी से लड़े नहीं, बीवी का दिल न दुखाए, बीवी के माँ बाप को गालियां न दे, बीवी के बहन भाइयों की इज्जतें न उछाले, उनका इज्जत और एहतराम करे, उसे सुकून दे। और गलती हो जाए तो 1-2 दफा माफ कर दे, तीसरी दफा बहस में समझा दे। जो बीवियों को मारते हैं ना, मुझे पूरे कुरान और हदीस से एक दलील कोई दिखा दे कि बीवी को चेहरे पे थप्पड़ मारना जायज है, मैं इसे अपना उस्ताद मान लूंगा। वज़रिबूहुन्ना की शराइत भी मौजूद है भाई, ऐसी कोई बात नहीं।
बीवियों की इज्जतें करना सीखो तो तब आपके साथ बीवी चलेगी। उसे पता होगा ये किसी और के साथ लेट कर भी हक निकाह के बाद मेरा हक नहीं खाएगा, वरना बै को देखा नहीं ना देवे हो आने कटगिन से हैं। तो भाई आप जब हुकूक पूरे कर, और एक बात सुनाओ, मेरे एक शागिर्द हैं, उनने बीवी के लिए यूं कार की खिड़की खोली और बीवी को बिठा दिया, तो सारे कहने लगे रन मुरीद है ना मुराद चख है, रन मुरीद बड़ा खड़ो थे, रन तेरी आप खिड़की कार दी नहीं खोल सकती। मैं कि मेरा भिरा ई तो सुन्नत ते अमल की, वो सुन्नत वो तो शोदे डर गए, कैसी सुन्नत। मैंने कहा भाई हदीस पाक में है, हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा उम्मुल मुमिनीन है, हुजूर पाक की हरम ज़ौजा इज्जत है, आपकी मेरी इस्लामी अम्मा जान है, ऊंट पर बैठ नहीं सकती थी, अल्लाह के रसूल ने ऊंट के साथ अपने घुटने को चिपकाया और ऊंट के पेट के साथ घुटना चिपका कर फरमाया सफिया इधर पांव रखो और ऊंट पे चढ़ जा। सफिया ने पांव रखा और ऊंट पे चढ़ गई। ये पुराने जमाने की कार की खिड़की नहीं है तो क्या है भाई, थोड़ा गुजारा, थोड़ा गुजारा। आलिया की इज्जत और एहतराम, वो आपके बच्चों की माँ है, आपकी नस्ल की बढ़ोतरी कर रही है, उसकी इज्जत और एहतराम रखें। और जब ये एहतराम रखेंगे ना, फिर आपकी दूसरी शादी के लिए पहली बीवी खुद वलीमा बांटेगी। मेरी पहली सास, मेरी घर वालियां ये वलीमों में यूं मौजूद होती हैं जैसे कोई मेहमान आकर बैठो, यूं खिला रही होती और खा रही होती। एक दफा चक्कर लाओ हजरत, ठीक है। तो मेरे दोस्तों करेंगे ना इंशाअल्लाह। मैं बात कहां से चला रहा था, तो आपको याद है, मैं को याद है, या को याद है, जरा हाथ खड़ा करें। हुणे याद है बैठे हो? अच्छा कितों चले था पिया, बिस्मिल्लाह बोल जी। शाबाश, एक निसाब, एक कुर्बानी, एक हजरत उस्मान, जज़ाकल्लाह। कुर्बानी के निसाब पर बात चली तो मैंने हिस्सों पर बात की। मेरे दोस्तों असल मौजू कुर्बानी फिर इस पर आई है, तो कुर्बानी के हिस्से भी करना सीखिए और कुर्बानी के गोश्त को बांटिए। याद रखें अल्लाह के रसूल की हदीस है, हजरत अम्मा फरमाती हैं, जामे तिर्मिज़ी है, अब्वाबुल अज़ाई है, बाबू मा जा फी वुजूबिल उज़हिया है, हजरत अम्मा जान राविया है, इरशाद फरमाती है अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा अमिला आदमियुन मिन अमलिन यौमन नहर अहब्बा इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम व अन्नहु लयअती यौमल क़ियामति बिकुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफिहा व इन्न दमा लयक़ौ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़ा मिनल अर्ज़ि फतीबू बिहा नफ्सा। अम्मा ने फरमाया अल्लाह के रसूल का फरमाने आलिशान है, मा अमिला आदमियुन मिन अमलिन यौमन नहर, बकरा ईद के दिन होंगे, मुसलमान कोई अमल करेगा, अल्लाह को महबूब तो होगा, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा अल्लाह की रजा मिन इहराक़िद दम, कुर्बानी के जानवर पर तुझे मिलेगी। और ये कुर्बानी का जानवर जाया नहीं होगा। अन्नहु लयअती यौमल क़यामा, क़यामत का दिन होगा, ये कुर्बानी का जानवर आएगा बिकुरूनिहा, अपने सींग लेकर, अशआरिहा, बालों खाल लेकर, अज़लाफिहा, अपने खुर लेकर आकर तेरे नामे अमाल में वजन बढ़ा देगा। व इन्न दमा, बेशक जानवर का खून, लयक़ौ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़ा मिनल अर्ज़, अभी जमीन पर गर्दन से निकले हुए खून का कतरा पहुंचा नहीं होता, अल्लाह कबूल पहले कर लेते हैं। फतीबू बिहा नफ्सा, दिल को खुश करके कुर्बानी किया करो। तो मेरे दोस्तों कुर्बानी में दिल की खुशी देखो। मैंने ऐसी भी खुशी देखी है जिस खुशी में लोगों की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। बकरे को पाला पोसा, जब उसकी गर्दन पे छुरी आई तो खुशी से आंसू आ गए कि मेरे मौला ये तो बकरा है। वाकई जज्बा हमारा बन गया कि अपनी गर्दन अल्लाह के रास्ते में देनी पड़ी तो 100 जान कुर्बान है। भाई असल तो यही जज्बा है। और एक बात मैं मजीद करता हूं, लिबरल्स, दीन से बेजार तबका, बेदीन तबका एक इल्जाम सुनाता है। इल्जाम क्या है? अजी गोश्त तो पूरा साल खाते हो, इस साल बकरा ईद का जानवर न खरीदो, आप कुर्बानी के जानवर के पैसे किसी गरीब के घर में दे दो, उसकी बिटिया ब्याही जाएगी, उसका जहेज बन जाएगा, कुआं खुदवा के दे दो।
او بھائی مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے کسی غریب کے گھر میں جا کے آٹے کی بوری دے دو. یہ ان کی رو رو کے سناتے ہیں مگر مچ کے آنسو بہا بہا کے. انہیں کہو ایک بات تو بتاؤ, کیا قربانی کا الٹرنیٹ بھی موجود ہے؟ قربانی کا متبادل بھی موجود ہے؟ قربانی کا متبادل تو کوئی نہیں ہے. روزے کا متبادل فدیہ ہے, قسم کا متبادل کفارہ ہے, طلاق کا متبادل رجوع ہے, لیکن قربانی کا متبادل تو شریعت نے کہیں نہیں بتایا. فرمایا من احراق الدم, اس دن خون بہا کر قربانی کرنی پڑے گی. آپ کو کس نے کہا کنواں کھدوا دے تو قربانی کا ثواب مل جائے گا؟ تمہیں کس نے کہا غریب کی بیٹی کے سر پہ آنچل ڈال دو تو قربانی کا ثواب ملے گا؟ بھائی وہ نیکیاں ضرور ہیں لیکن اپنے مقام پہ. تجھے آج یاد آئی ہے جب قربانی کی باری آئی, 2.5 لاکھ کا موبائل تو نے اپنی جیب میں رکھا, اپنی بیٹی اور بیٹے کو لے کر دیا, اس وقت یاد نہیں آیا تھا؟ 20 سے 25 لاکھ کی کار تو نے خرید لی, کیا اسپورٹیج پر جا رہا ہو تو کیا اسپورٹیج پر بیٹھتے ہوئے تجھے قربانی کا جانور یاد نہیں آیا؟ غریب کی بیٹی یاد نہیں آئی؟ یاد آئی؟ بلی تھیلے تو بہر کٹ میرا بھرا رولا کیڑا ہے. دین پر اعتراض کرنا تجھے آتا ہے, دین پہ آبجیکشن کرنا تجھے آتا ہے؟ بھائی ایسی بات نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. بھائی شریعت کی قربانی عبادت ہے اور عبادت کا متبادل کوئی نہیں ہے. غریب کو دینا چاہیں دے دیں, تمہیں کون منع کرتا ہے؟ لیکن جو قربانی ہے وہ قربانی ہی کریں گے. اور پھر میں ایک بات یہاں مزید سمجھاتا ہوں کہ ہم تو گوشت کھانے کے لیے قربانی کرتے ہی نہیں ہیں, ہم تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. گوشت ویسے ہی مل جاتا ہے. جیسے کوئی مسلمان نماز پڑھے, کوئی کہتا ہے میں ورزش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, ورزش ویسے ہی ہو جائے گی. ہم تو اللہ کی رضامندی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں بھائی, تو گوشت ویسے ہی مل جائے گا, ہمیں تو اللہ کی رضا مقصود ہے. اور سنیں, قربانی اتنا بڑا اجر ہے کہ جسے کھا لو وہ مغز ہے, جسے کھا لو وہ کلیجہ ہے, جسے کھا لو وہ گوشت ہے, جسے کھا لو وہ جو ہے نا چوڑی اور دستی ہے, اور جسے نہ کھاؤ وہ کھر ہے, جسے نہ کھاؤ وہ سینگ ہے, جسے نہ کھاؤ وہ بال اور کھال ہے, جسے نہ کھاؤ وہ ناخن ہے. حضور نے فرمایا نہ کھانے والی چیزوں پہ بھی تمہیں ثواب ملے گا, کھانے والے کا تو اس سے بڑھ کے ثواب. واہ کیسی باتیں کر رہے. میں گندم کی بوری غریب کے گھر میں دے دوں, گندم کے دانے زیادہ, یہ جانور پہ لگے ہوئے بال زیادہ. کیڑے رولے میں کو پا رہے تھے لالا, کہاں آپ لے گئے بھائی؟ ایسی بات نہیں. قربانی اپنی جگہ. اور پھر قربانی کے لیے مسائل بھی سمجھیے. قربانی کا مسئلہ یہ ہے, آج کل باہر ممالک کے لوگ پاکستان میں قربانی کے جانور کے پیسے بھیجتے ہیں, بھئی یہاں ذبح کر لو. تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ غلطی کرتے ہیں. کو بھی عید کے تیسرے دن بھی کر لیتے ہیں. بھئی عید کے تیسرے دن باہر والوں کی قربانی اس وقت کریں جب وہاں بھی عید ہو تو, ورنہ شرط یہ ہے کہ یہ قربانی کا جانور اور قربانی کرنے والا دونوں عید کے وقت میں ہوں. ادھر بھی عید ہو ادھر بھی عید ہو. ظاہری بات ہے ہمارا پہلا دن ہوگا ان کا دوسرا دن ہوگا, ہمارا دوسرا ہوگا تو ان کا تیسرا ہوگا. پہلے اور دوسرے میں کر لیں تو کر لیں, تیسرے میں باہر والے کی قربانی نہیں ہوگی. ہمیں قربانی اور صاحب قربانی دونوں کے وجود فی العید ہونا چاہیے. عید میں ہوگی تو بات بنے گی, ورنہ نہیں. اور میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں, قربانی کا جانور ذبح کرے نا تو کم از کم آداب ہے کہ 3 حصے کیا کرو. ایک غریبوں کے لیے, ایک اپنے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے. سارا رکھ لو, منع نہیں ہے, جائز ہے, قربانی ہو جائے گی, لیکن آداب یہ ہے. اس آداب پہ ایک بات سناؤں, میں ویسے ہی آپ کے ظرافت طبع کے لیے سنا رہا ہوں. ایک بندے نے خواب دیکھا کہ میرا بکرا قبول ہو گیا اور جنت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے. تو وہ گیا, میاں بکرے صاحب کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی ٹھیک ٹھاک, زبردست, ڈنڈیار, بہترین, اور سنائے. نے کہا جی خیریت, جنت میں آ گئے؟ انہوں نے کہا قبول ہو گیا. انہوں نے کہا میں تو بخشا گیا, واہ کیا بات ہے, تو جنت میں آ گیا؟ جنت میں آ گیا. انہوں نے کہا بکرے صاحب تو دنیا میں گھومتا پھرتا تھا, اٹھتا بیٹھتا تھا, کڈاڑیاں مرے میں کو دیکھا بھاگ دھڑک کے دکھا, مجھے دکھا تو بھاگ دوڑ کے. تو بکرے نے کہا سوری مالک صاحب میں بھاگ نہیں سکتا. انہوں نے کہا کیوں نہیں بھاگ سکتا؟ اٹھ کے پکڑ کے کھڑا دیا. جب وہ کھڑا ہوا نا تو اس کی 3 ٹانگیں تھی, چوتھی نہیں تھی. تو بکرے کو آکے, بکرا تو منڈا تھی کیا شودا, گڈے تیری جانگ شانگ کوئی نہیں. بڑا پریشان کہنے لگا یا میرے اخلاص میں کمی ہوگی, شاید ریاکاری ہوئی ہوگی, یا کوئی پیسہ اوپر نیچے ہو گیا اور چوتھی ٹانگ اس کی نہیں لگی.
तो परेशान हो गए, सिर ते हाथ मारा, ओहो केड़ी मौत पई आई। तो बकरे ने कहा मालिक साहब परेशान ना हो, इसका हल मैं देता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कबूल तो वो भी हो गई थी मेरी चौथी टांग, लेकिन तूने फ्रीजर में 1 साल से फ्रीज करके रखी हुई है, वो खाएगा तो यहाँ लगेगी ना। मुराद ये है कि अपने पास ना रख लिया करो, कुछ अगू भी नहीं करो। ही ना कह मौली से बाके बकरा बैठा आयु था, तो मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूं। तो भाई इस तरह किया करें। और एक बात मैं मजीद भी आपकी खिदमत में समझाऊं, कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने से पहले उसके सामने छुरी तेज मत करो। एक सहाबी ने की तो अल्लाह के रसूल ने उसे समझाते हुए फरमाया, मेरे सहाबी इसे 2 मौतों से न गुजार, एक उसको ज़बह करेगा, एक उसके सामने छुरी तेज करेगा। ये बुरी बात है, उसके सामने छुरी तेज ना किया करो। उस जिंदा जानवर को, उस फौतशुदा जानवर का खून न दिखाया करो, उसके सामने जाके इसकी सिरी को न डाल दिया करो, इसके पाए को न डाल दिया करो, इसके गोश्त और इसकी खाल को उसके सामने न डाला करो। ज़बह हो गया, पर्दा लगा लिया, खून धो दिया, साफ जगह पे दूसरे जानवर को लाओ, वरना इस जानवर का हाथ तुम्हारे गिरबान में होगा कल क़यामत में। आप कहेंगे हाथ भी होता है? जी हाँ, जानवर की पिछले 2 टांगों को टांगे कहते हैं, अगली 2 टांगों को हाथ कहते हैं। इसी वजह से उर्दू में उसे दस्ती कहते हैं। मता तो कह भाई ले तो भी हाथ होंदा है। जी हाँ होंदा है साहब, मैं कोई आपको नहीं बढ़ाया नहीं। मैं ये 7 दफा दखले मुकद्दर करता हूँ कि मेरे जाने के बाद डॉक्टर साहब कोई कहे कीड़े मौली को सड्डा विवाद आई ले ले हाथ होंदा है। भाई दस्ती तुम कहते होते, हाथ मैं आधा। तो मेरे दोस्तों ये आदाब है, इन आदाब का भी आप लिहाज किया करें, करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल में टाइम काफ़ी है। ये हजरात मुझे कहते हैं नमाज की वजह से लेट न कर लेना। मैंने कहा मैं तो अपना काम पूरा करूँगा, लेकिन आप इन्हें जितना टाइम दिया मैं चला। सही है मौलाना? अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मर्द औरत की नमाज में फ़र्क है? जी हाँ, मर्द औरत की नमाज में फ़र्क है। हुज़ूर पाक की बहकी में सही हदीस मौजूद है, फ़ज़ुम्मा बाज़ुल लहमी इलल अर्ज़ फ़इन्नल मरअत लैसत फ़ी ज़ालिका कर्रजुल। हुज़ूर पाक ने औरतों को समझाया कि सजदा यूं करो, मर्द की तरह न करो कि मर्द औरत की नमाज में फ़र्क मौजूद है। औरतें दूसरी और तीसरी शादी की मुखालफत करती हैं, समझाने के लिए मैंने अहादीस पाक पेश कर दी हैं। कुरान और सुन्नत हदीस की रोशनी में वज़ाहत फरमाए, मेराज वाली रात हुज़ूर पाक ने अल्लाह की ज़ियारत की थी। तफसीर इब्न कसीर में सूरत नजम के पहले रकू के तहत इब्न अब्बास की सही हदीस मौजूद है। फरमाया अन्ना नबिय्यना क़द रअा रब्बह, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की ज़ियारत की है। मुफ्ती साहब इमाम आज़म की तकलीद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं इमाम साहब ने पूरी ज़िंदगी ईद उल अज़हा नहीं पढ़ी। इमाम साहब के बालिग होने के बाद 65 हज किए हैं, और इमाम साहब की बालिग होने के बाद कुल 65 साल उम्र है। तो हाजी हज पे होता है, हज के दिन वो बकरा ईद नहीं पढ़ता, इसलिए इमाम साहब हज पे होते थे तो बकरा ईद उनके ऊपर नहीं आती थी। कुछ लोग नमाज जनाजा में सूरत फातिहा के बाद पढ़ना किसी सही हदीस में, भाई नमाज जनाजा में बतौर दुआ आप सूरत बकरा पढ़ लो, बतौर दुआ सूरत आल इमरान पढ़ लो, लेकिन मसनून जनाजा वो है जो अब हम पढ़ते हैं, पहली सना, दूसरी फिर दरूद पाक दरूद इब्राहिमी, ये पढ़े तो अफजल है। तीसरी में अल्लाह मग़फ़िर लिहय्यना, हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत मुस्तदरक अल सहीहैन लिल हाकिम में मौजूद है, हुज़ूर पाक ने पढ़ी, और चौथी तकबीर के बाद सलाम है। जज़ाकुमुल्लाह ताला।